The difference between amalgamation of nature of merger and amalgamation That in is nature very of important. purchase. That is very important question, Hers. Yes, sir. You should memorize that question. That will Yes. carry minimum 5 marks, maximum 10 marks. Okay. In the last exam, it was not. If it was not asked, then in this year it might be asked. So prepare it well. And next. Types of amalgamation, forms of amalgamation, Mm-hmm. important terms defined in AS14. Okay. Have you uh, have I given you the notes on trade liabilities and liabilities, assets No, purchased and business purchased? no, sir. Okay. If not, I have given. Then I will be giving it after the class. Okay, sir. So I'm discussing and you listen. Okay. Okay, sir. So let me explain. Acha, what do you mean by liabilities? Liabilities, sir, किसी का पैसा बकाया हो या वैसा Mm-hmm. So वैसे provident fund liability or assets? पीएफ। Provident fund, you know हाँ सर। what it is. Tell me. सर प्रोविडेंट फंड तो मतलब जो सेविंग्स रहता है एक रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आपका जमा सेविंग्स है वो वाला वही होता है। हाँ, तो ये लाइबिलिटी है या एसेट्स है? लाइबिलिटी है सर। लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ। देखिए, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एनीबडी इन योर फैमिली इज वर्किंग समवेयर इन टिस्को, टेल्को, यस सर। टाटा स्टील, वेयर? नो, नो सर, मम्मी Oh, टीचर। nobody. So mother is a teacher. Okay, यस। in which school or college? जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल। So every month she is getting salary, यस सर। and from that salary, a few parts. Let's earlier the maximum limit is 12% and minimum 10%. 10% of the basic salary is deducted every month from the यस सर। salary, and whatever deduction is there, suppose your salary is 10,000 rupees, so 10% is how much? सर 1000। So 1,000 will be deducted from your mother's account, and 1,000 that is school. It's a school or college, the institute where स्कूल your सर। mother, yeah, स्कूल स्कूल। that is school will contribute 1,000 more from यस their सर। account, from a school's account, and accumulating it together, it will become how much? 2,000. So that 2000। 2,000 will be deposited in the provident fund account every month. Okay, 1,000 is your mother's contribution and 1,000 is school's contribution. Adding together, these 2,000 will be deposited in a separate account that is called Provident Fund account, यस and सर। the government of India declares rate of interest every year or every quarter or maybe half yearly it is declared by the government, and accordingly that interest rate is fixed and given, and that interest rate along with the provident fund amount, when a person retires or in between also prior to retirement, he can withdraw a few parts, and that is tax free, and it is liability, of course it is liability from the company from the company side. And यस सर। similarly there is one more fund that is called pension fund, ठीक है जी? यस तो सर। हाँ। पेंशन फंड भी क्या है? लाइबिलिटी। सो ट्रेड लाइबिलिटीज इंक्लूड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग स्टॉक, कमर्शियल गुड्स सच एज ट्रेड क्रेडिटर्स, जिससे आप ट्रेड का खरीदते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें जो भी खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वो आपका हुआ ट्रेड क्रेडिटर्स।
Similarly, the bills payable, and another is bills receivable. When you sell the goods to debtors, you raise what? Bills receivable. And when goods are purchased from creditors, bills are payable. So bills payable are liabilities, and bills receivable are assets. They are current assets and current liabilities. On the other hand, under the word liabilities, following are included in addition to trade liabilities, such as debentures, bank loans, provident fund, pension fund, etc. ठीक है जी। अब Yes, sir. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो पिछले साल का भी था और उसके पिछले साल, प्रायर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये सब Hmm. सारा एक्यूमुलेट होता है उसको, और एंड दैट बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, Yes. ठीक है। Hmm. एंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ इट अपीयर्स ऑन द, Liability side. we write this accumulated profits on the liability side of the balance sheet. Yes. These are transferred to the shareholders account of the vendor company. इसको हम लोग यही यही पढ़ रहे हैं ना, अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेशन Hmm. पढ़ रहे हैं। तो ये Yes, sir. कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? वेंडर कंपनी में। अब एक्यूमुलेटेड Yes. लॉसेस, जैसे प्रॉफिट हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसी तरह से 2 3 4 साल का लॉस अगर है तो सब लॉस को मिला करके जो होता है एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। इंक्लूड क्या क्या होता है जी? ट्रेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, सो दे आर ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर्स अकाउंट ऑफ द वेंडर कंपनी। उसके साथ कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन फ्यूचर लॉसेस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजन करते हैं ना, घर में कुछ पैसा रखते हैं ना कि अकस्मात से कुछ अगर अचानक से कुछ Backup खर्चा के आ लिए. गया। हाँ हाँ सर. जी, बैकअप। हाँ, तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है। कंटिजेंसीज अबाउट व्हिच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड एंड यू हैव नॉट थॉट कि इट विल अराइज, बट during the course of month, during the course of business, it has arisen, and you have to pay that liability. So for that purpose, a provision is made. Sufficient fund you should have to meet that liability. Okay. So Yes. provisions relating to the assets are transferred to the realization account. इसमें क्या होता है? एक realization account खोलना पड़ता है, Hmm. and of the realization account of transferor or vendor company. अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या होता है जी? दिस फंड रिलेट्स टू शेयर होल्डर्स एंड इंक्लूड्स शेयर कैपिटल पहला है, एंड दूसरा क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी मैं आपको एक नोट दे दूंगा, भेज दूंगा क्लास के बाद। देखिए लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, डिवेंचर्स आएगा, लोन्स आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है जी? आउटस्टैंडिंग मतलब सर जो बचा हुआ है देना. बचा हुआ मतलब 10 रुपया में से 2 रुपया खर्चा कर लिया, 8 रुपया बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ। हाँ सर, वैसा ही कुछ. अच्छा, मोनू टेल मी। जो मोनू है वेरी, अनेक्स या टेल मी। जो मैंने बोलिए। expenses and additional expenses. ओके, इट इज नॉट नाइदर एडिशनल एक्सपेंसेस नॉर बचा हुआ। Outstanding is basically liabilities. Whenever outstanding is what is mentioned in the question or anywhere you find, it means liability. How your staff has worked, and let's say this is the month of April. So as per rule, you must have cleared the salary of the staff for the month of March by the Yes. 10th or say 1st or 30th of March. You must have cleared your staff salary, which you have not Yes. paid. You are unable to pay. So for the month of March, you have not paid. Similarly, for the month of February, you have not paid. So that not paid amount is your outstanding. Due amount is your outstanding. आया Yes. समझ में?
Yes, sir. बस। तो लायबिलिटी है, स्टाफ ने काम तो कर लिया, उसने काम किया लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है जी, वही आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होता है, जैसे कि बिजली का बिल है, आपने पे नहीं किया, इंश्योरेंस का यस। प्रीमियम है, मान लीजिए आपने पे नहीं किया, ठीक है। देन प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, देन वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट, ये भी आपका लायबिलिटी में है। एम्प्लॉयज का डिपॉजिट, workman's profit sharing fund, staff superannuation fund is also a retirement fund, okay. Unclaimed Yes, sir. dividend, shareholders have bought the shares of the company, and dividend you declared, but they have not come to claim the dividend. Okay, maybe after 2 years, 3 years, they will come and ask for the dividend. Then also you have to pay. You cannot say that we had declared last year, but you didn't come, so I cannot pay you. No, you have to pay it. So what? Unclaimed. Then provision for taxation. Tax के लिए आपको provision करना होगा, कितना tax आएगा, क्या होगा. जी. And provision for gratuity. What is gratuity, Monu? What is gratuity? What is gratuity, Harsh? यस सर। What is gratuity? Gratuity is also a retirement benefit. When a person retires, he gets, or you need to complete at least 5 years in an organization to be eligible to get the gratuity. ठीक है जी. ग्रेजुएटी और Yes, sir. प्रोविजन फंड में क्या अंतर है सर? प्रोविडेंट फंड में, यस सर। प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है आपका डे 1 से कटने लग जाता है। ग्रेच्युटी भी हर कंपनी का होता है, रूल होता है, आपका डे 1 से कटने लग जाता है। ग्रेच्युटी का रूल है जी, आप 5 साल कंप्लीट करते हैं, देन ओनली इफ यू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर 5 years in an organization, you are eligible to withdraw the amount of gratuity. So when you join an organization, you should stick to the organization at least 5 years to get the gratuity. ठीक है, then only the मतलब रेलवेज में मिलता है सर ग्रेजुएटी? नहीं भाई, टिस्को में भी मिलता है, अच्छा। टाटा मोटर्स में मिलता है। योर मदर इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, शी मस्ट बी यस। contributing to some part of her salary in gratuity account. The employer must have been deducting. ठीक है, यस। salary it's a part of your salary which is paid to you at the time of your retirement. रिटायरमेंट के बाद आपने हर महीना कमाया पैसा, वो पैसा तो खर्चा हो गया, होते रहा रेगुलर इनकम। बट व्हाट विल यू गेट आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायरमेंट जब आप बूढ़े होकर रिटायर होंगे 60 साल में, कुछ चाहिए ना जी आपको, तो उसी पैसे से इफ द कंपनी पेज यू द एंटायर अमाउंट, लेट्स से योर सैलरी इज 10,000 per month, and the company gives you 10,000 per month in your hand, do you think that you would be eligible to save even a rupee from that 10,000 rupees? No, you No, won't sir. be able to. पॉकेट में पैसा रहने से नहीं बचता है। तो what do they जी. do? They deduct from your salary itself. They don't give it in your bank or in your hand, so that Like relief amount, sir. at the time of retirement, when nobody will ask you anything, कोई पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, then there will be retirement का सहारा। ठीक है जी। यस सर। Okay. हाँ, ट्रेड लाइबिलिटीज क्या होता है? ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, these two terms are ट्रेड लाइबिलिटीज। अकाउंट्स पेएबल क्या होता है जी? बिल्स पेएबल, बिल्स जो किसी को पे करना है, बिल उसका अमाउंट, एंड ट्रेड क्रेडिटर्स ऑल्सो। नाउ देयर आर few differences are there. I am telling you reserve funds. Okay, I'll give you the notes. Okay, you just go through Yes. it. So अभी आपके पास क्या है? पेज नंबर 397 देखिए तो है, मैंने अभी भेजा है। आज हम लोग एक दो सम भी करेंगे। मिला क्या? Yes, sir. परचेज Now कंसिडरेशन, the Yes, sir. you have purchase consideration, यस सर। you read. लास्ट वाला सर।
Meaning the purchase consideration means the price payable by the transferee company to the transferor company. परचेज कंसिडरेशन मतलब सोच लीजिए कि कितना में खरीदा है, वो ट्रांसफरी कंपनी किसको देगी जी? ट्रांसफरर कंपनी को देगी फॉर टेकिंग द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकॉर्डिंग टू AS 14, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समझ जाइएगा परचेज प्राइस, ठीक है ना जी? Yes. Consideration for the amalgamation means the aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets. कैश और अदर एसेट्स क्या होता है? कैश में दिया कुछ और कुछ अदर एसेट्स में दे दिया. अब इन काइंड एक होता है कैश, एक होता है इन काइंड. मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. जी और मैंने आपके हॉस्पिटल को लेट से 5 लाख रुपया दे दिया कि लो भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, टेक दिस वन. एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. आप Yes. हॉस्पिटल चला रहे हो, ये लो 5 लाख रुपया हॉस्पिटल में यूज करो, ओके, फॉर डूइंग द बेनिफिट or for modernization of the hospital. Okay, you use this fund, and I trust and I believe that you would be using that money not for your own purpose but for the development of the hospital. Now you have reached to Monu also. What Monu has done, she has not given you cash. She has donated you one ambulance, Yes. okay, or maybe that she has given you one X-ray machine that is required in that hospital. Yes, sir. You had old one, so she has donated X-ray machine of rupees 10 lakhs. So that is in kind. You understood? I gave Yes, you Yes, sir. cash, she gave you in kind. तो kind होगा asset, asset may be in kind also. आया समझ में? Yes. आप शादी ब्याह में कैश का लिफाफा भी देते हैं और सोना चांदी भी देते हैं, तो दैट सोना चांदी इज काइंड, ठीक है, इन काइंड. Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या है? बाय द ट्रांसफर कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. अब पढ़िए इसको आगे. हर्ष, डज परचेज कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ओनली द पेमेंट्स मेड टू द फॉर द शेयर होल्डर्स. दिख रहा है? सर एक कैप्सूल नोट का ऊपर वाला है सर. अभी कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अब क्या है मेथड्स है इसका? 3-4 मेथड है. पहला है लमसम मेथड. आप जब परचेज कंसिडरेशन कितना में परचेज किया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक है इसका लमसम मेथड, लमसम पेमेंट कर दिया. दूसरा है नेट एसेट मेथड कि एसेट्स कितना है आपके पास में. एक है नेट पेमेंट मेथड. एक है शेयर एक्सचेंज मेथड कि 4 शेयर है आपके बदले, तो 4 के बदले मैं नया कंपनी में आपको मैं 2 शेयर दूंगा. आ रहा समझ में? Yes, sir. तो कैप्सूल नोट के ऊपर वाला पढ़िए, नेट पेमेंट मेथड पढ़िए. एक अकॉर्डिंग टू AS सर आधा 14. ही आया है, इसमें पूरा आया नहीं है, कैप्सूल नोट से ही आया है, इसका नीचे है पूरा. अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा. इसका देखिए कैसे होता है जी. Purchase consideration is primarily based on net payment method. Under this method, purchase consideration is aggregate of payments made by the transferee company in the form of cash. कैसे होता है जी? In the form of cash, comma, issue of shares and other securities to the shareholders of transferor company. क्या क्या दिया? कैश दिया, फिर उसके बाद और क्या दिया जी? शेयर दिया, शेयर इशू किया, एंड अदर सिक्योरिटीज, और दूसरा कुछ सिक्योरिटीज है तो वो भी दिया ट्रांस. सो द पेमेंट्स मेड टू डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक ट्रेडिंग एंड अदर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और कैश आर नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन. तो कैसे बनाएंगे परचेज कंसिडरेशन? बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट्स इन कैश फॉर शेयर होल्डर्स. देख लिए, लिखिए तो ये नेट पेमेंट मेथड लिखिए ऊपर में. ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ, सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बड़ा सा दीजिए हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अंडरलाइन कीजिए. फिर लिखिए नंबर 1 नेट पेमेंट मेथड.
The computation of परचेज कंसिडरेशन, sir. ठीक है। पहला लिखिए नेट पेमेंट मेथड, एनपीएम। हाँ, यस सर। नेट पेमेंट मेथड में लिखिए, फिर नीचे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अब क्या है, पेमेंट्स इन कैश फॉर शेयर होल्डर्स, अमाउंट के जगह में क्रॉस क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस क्रॉस मतलब क्या, वो वहां पे अमाउंट आएगा। लेफ्ट साइड में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट्स इन कैश फॉर शेयर होल्डर्स, राइट साइड में रुपीज के नीचे में क्रॉस क्रॉस कर दीजिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? यस। The payment in cash फॉर शेयर होल्डर्स, नीचे में लिखिए ऐड, ADD ऐड, पेमेंट्स, पेमेंट्स इन और विद इन ब्रैकेट और इशू ऑफ, ऐड पेमेंट्स इन और विद इन ब्रैकेट और इशू ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। फिर क्रॉस क्रॉस कर दीजिए अमाउंट के जगह में। फिर लिखिए ऐड पेमेंट्स इन और विद इन ब्रैकेट राइट डाउन और इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर शेयर होल्डर्स, और क्रॉस क्रॉस कर दीजिए राइट साइड में। सबको नीचे में जोड़ दीजिए, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। तो क्या सब आया, पेमेंट्स इन कैश फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कितना कैश दिए वो आ गया, प्लस उसमें कीजिए पेमेंट्स इन शेयर्स टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को शेयर दिए वो जोड़ दीजिए, और क्या जोड़ दीजिए, पेमेंट्स इन और इशू ऑफ issue डिबेंचर्स फॉर डिबेंचर फॉर शेयर होल्डर्स, सबको जोड़ दीजिए, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। उसके नीचे में लिखिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एग्रीड प्राइस। परचेज कंसिडरेशन को पीसी भी बोलते हैं। पीसी आएगा तो मतलब यू शुड नॉट अंडरस्टैंड पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, परचेज कंसिडरेशन। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर नहीं समझिएगा, ठीक है ना। purchase यस सर। consideration. लिख लिया आपने, यही है उसका फॉर्मूला। अब ये इलस्ट्रेशन 1 देखिए तो पढ़िए हर्ष क्या है। यस सर। Ritu Ltd agrees to take over the business of एलटीडी मत बोलिएगा, इसको लिमिटेड, दैट इज लिमिटेड। Limited. Yes sir, हाँ Limited. हाँ, बोलिए। Take over the business of Shelly Limited. The consideration being the assumption of liabilities amounting 85,000, redemption of the debentures of rupees 3 lakh at a premium of 10%, payment of the costs of winding up rupees 5,000, and the payment of rupees 20 per share in cash, and the exchange of 5 fully paid shares of rupees 10 in the Ritu Limited at a market price of 20 per share for every share in Shelly Limited. The share capital of Shelly Limited consists of 60,000 shares of rupees 50 each fully paid. Calculate purchase consideration. तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि कौन ट्रांसफर कंपनी है, कौन ट्रांसफरी कंपनी है। रितु लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ शैली लिमिटेड। शैली लिमिटेड बिक रही है और रितु लिमिटेड खरीद रही है। आया समझ में? Yes. अब क्या है, पेमेंट ऑफ कैश, कैश कैसे दे रहा है जी शेयर होल्डर, क्या सब मैंने ऊपर में लिखाया है, पेमेंट इन कैश टू शेयर होल्डर्स। एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। Yes sir. तो ऐसे लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऊपर में लिखिएगा, लिखा है ना उसमें सॉल्यूशन में। Yes sir. हाँ, और उसके नीचे में लिखिएगा पेमेंट ऑफ कैश, कैश कैसे दे रहा है जी, क्या दिया कैश के बारे में। द शेयर कैपिटल ऑफ शैली लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 60,000 शेयर को कैसे दे रहा है, 20 वाला के बारे में कहाँ पे दिया है इसमें। Sir, 5,000 and the payment of rupees 20 per share in cash and in cash. तो पेमेंट ऑफ कैश हो गया 20 रुपया करके पर शेयर, और 60,000 शेयर है फुल्ली पेड अप 50 रुपया करके, है Yes. ना।
हाँ तो कितना हो गया, 12 लाख हो गया, हुआ ना जी? सर, इसमें तो 16 to 20 ही दिखा रहा सर। हाँ, तो कितना हो गया 60 इंटू 20? 12 लाख। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? और सर फिर ये वाला क्या, कंसिस्ट ऑफ 60,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड। हाँ, तो फुल्ली पेड रहेगा उसी को ना पे करेगा, वही 60,000। अच्छा, यहाँ ठीक है से। ना? और पेमेंट्स इन शेयर्स ऑफ रितु लिमिटेड। अब पेमेंट्स इन शेयर्स क्या क्या है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 20। ये मल्टीप्लाइड बाई 5 कैसे आया, ये बताइए? And that's from सर the यहाँ इन पे कैश five एंड options. कैश एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ 5 हाँ, फुल्ली पेड शेयर्स। ऑफ ₹10 ईच। तो 5 फुल्ली पेड से देखिए क्या है, पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग ऑफ 5,000 एंड पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर इन कैश। तो 20 रुपये करके दे रहा है, एंड द एक्सचेंज ऑफ 5 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ, मैंने पढ़ाया है ना आपको, फुल्ली पेड अप शेयर्स रहेगा उसी का होगा, 20 करके है। तो 60,000 को मल्टीप्लाई किया, 5 शेयर करके दे रहा है, और 20 रुपये करके, तो कितना हो गया, 60 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन हो गया 72 लाख, 72 लाख हो गया। आया समझ में? यस। Yes, sir. दूसरा पढ़िए, मोनू पढ़िए, तो थोड़ा जोर से पढ़िएगा। नेट एसेट, ये एक मेथड हो गया, एक मेथड हम लोगों ने सीखा है। एग्जाम में आपको परचेज कंसिडरेशन निकालने आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का, बोलेगा कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना होगा, कितना शेयर के बदले कितना क्या दे रहा है, और जो फॉर्मूला ऊपर में लिखा है मैंने, परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड का वही है, और इस तरह से निकालना है। चलिए दूसरा पढ़िए तो मोनू। Net assets method. Under this method, the amount of purchase consideration is calculated by adding the agreed values or fair values of तो only those assets. हाँ, एग्रीड वैल्यू दोनों पार्टी के बीच में जो एग्रीड हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जी, जिस प्राइस पे उसी पे कैलकुलेट होगा। और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मैंने बताया था ना बार बार कि हम लोगों ने एग्री किया है इतना पे, और हर्ष जो है सो चालाक है, तो मार्केट में जाके पता कर लिए कि भाई इतना में होगा, तो दैट प्राइस जी। इज योर फेयर वैल्यूज। अंडरस्टूड हर्ष? यस सर। Yes, sir. हाँ, ऑफ ओनली दोज एसेट्स पढ़िए। Assets of only are- those assets which have been taken over by the transferee company and deducting them from the agreed value of outside liabilities takes over by the transferee company. तो सबसे पहले क्या है जी, एसेट्स व्हिच हैव बीन एग्रीड, ऑफ ओनली दोज एसेट्स व्हिच हैव बीन टेकन ओवर बाय दैट। जो एसेट्स को लिया है सिर्फ उसी एसेट्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए इसमें कैसे क्या क्या सब है, बोलिए। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैसे कैसे, एसेट टेकन ओवर, लैंड एंड बिल्डिंग कितना पे लिया है, एट फेयर वैल्यू, अमाउंट के जगह में लिखा है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, जो वैल्यू है उसका वो है, फर्नीचर है, डेटर्स है, बिल्स पे रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज है, किस किस वैल्यू पे लिया है। अगर कुछ नहीं दिया है तो नेट वैल्यू जो है, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू मतलब बुक में जो प्रीवियस ईयर का जो था, बुक में उसका बैलेंस शीट में जितना दिखा रहा था। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि एग्रीड वैल्यू पे, तो एग्रीड वैल्यू के बारे में लिखा रहेगा कितना अमाउंट है, या नहीं लिखा है तो फेयर वैल्यू है कितना, वो लिखा रहेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जो बुक में है, बुक वैल्यू मतलब जितना लिखा हुआ है बैलेंस शीट में वही अमाउंट आएगा। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़िए। कैश एट बैंक, फिर क्या है, लेस कीजिए उसमें से। Cash at banks, outside liabilities, debentures, trade payable, bill payable, provisions for liabilities. ठीक है, That is individually at agreed value. और उसके बाद गुडविल को ऐड कीजिएगा अगर गुडविल है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई इतना परसेंट नेट एसेट्स का, जो नेट एसेट्स जो हमने निकाला है इतना, टोटल एसेट्स को लिखा है, किस दाम पे लिखा है, एग्रीड प्राइस पे लिखा है, या बुक वैल्यू पे लिखा है, या फेयर मार्केट वैल्यू पर लिखा है, वो लिख लिया। माइनस हम लोगों ने लायबिलिटी किया है, माइनस तो लायबिलिटी जो भी एग्रीड वैल्यू है उस लायबिलिटी को डिबेंचर, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल को माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद जो हमारा नेट एसेट आया है
उस पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इतना परसेंटेज गुडविल है, तो परसेंटेज कितना है, जितना 12% है तो 12/100 कर दीजिए, इतना अमाउंट आएगा वो भी आप जोड़ दीजिए, उस सब जोड़ के क्या आ जाएगा जी हर्ष, परचेज कंसिडरेशन। वही आएगा। तो ये समझ गए, ये एक मेथड है, नेट एसेट मेथड ये हो गया, और पहला था नेट पेमेंट मेथड, यस समझ रहे हैं? यस Yes, sir. हल्का चीज समझ में आ रहा था, भारी चीज भी समझिए, ठीक है? हाँ चलिए, अब आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बताइए। आ रहा सर। आ रहा है आपके पास? डू यू हैव एनी बुक मोनू? Yes, sir, we have books. Which book you are having? Which publication? And what is the? Huh? We have semicolon. You have one book now, at least. Yes. You must have. If you are not having, you must buy one book of corporate accounting, which in which these chapters are covered. These contents are there. Accounting for amalgamation, holding company, reconstruction, all these stuffs are there. You must have at least one book. And whatever I am teaching, I am giving you, I am discussing these things should also be there. ठीक है, language may change but the crux of the things are same. Understood? आपके पास भी है हर्ष, अब you have one book corporate Yes. accounting, these things are there in your book, यस ठीक है? ऐसे नहीं होगा तो किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा, but this is there. Now read Harsh classification of clarification of fair value. For securities, the value fixed by the statutory authorities may be taken to be the fair. In case of the other assets, fair value is the amount for which an asset could be exchanged on the क्या है सर, वहाँ पे कट गया है। Exchanged between the buyer and the seller. Between the buyer and the seller at market value. Value, हाँ. The absence of any information regarding the agreed value of market value, such Assets may be valued at their book value. वही मैंने पहले बताया ना जी कि जो उसमें वैल्यू दिया है कि इस हिसाब से लेना है तो उस हिसाब से लीजिए, मार्केट वैल्यू दिया है तो मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू दिया तो फेयर वैल्यू, एग्रीड वैल्यू दिया तो एग्रीड वैल्यू, नहीं दिया है कुछ तो बुक वैल्यू। आया समझ में? yes sir. बुक वैल्यू का मतलब जो लिखा हुआ है उसमें वही, ठीक है ना? Yes sir. चलिए आगे पढ़िए, समझ में आ रहा है ना मोनू? Yes, sir. मोनू नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन and Okay, ask sir. immediately. Don't keep the doubts and continue. Clear immediately. Yes, sir. या मुझे अगर कुछ रहेगा डाउट तो मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा। चलिए आगे बढ़िए। Important points to be considered while calculating purchase consideration by net asset method. by net assets method. Assets, the term assets will always include cash in hand and cash at bank unless Otherwise stated. but shall not include any fictitious assets like preliminary expenses statements and statements of profit and loss, debit balance, underwriting commission, etc. ये देखिए, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है जी? मोनू टेल मी। मोनू, यू आर स्टडिंग बैलेंस शीट, you are in loan department, you sanction, you do not directly sanction but you collect the files. You tell me what is this thing, preliminary expenses. People who are applying for loan, they must be coming with the, you must be asking for balance sheet of the company if they are a corporate company, don't you ask? But actually now we are only providing ITR. We don't require much of balance sheet. But if a company is applying only on the basis of if I am having a company and I want a loan of let's say 1 crore, will you give me only based on ITR? No, that requires. Then? That requires, but now we are not based working on that, sir.
Okay, tell me, even if you don't, but it is required, it is mandatory. Without balance sheet, it cannot be Yes. granted. Tell me. See, basically the what we are discussing, preliminary expenses are those expenses which were spent prior to Hmm. formation of company. ठीक है जी, कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ करना पड़ता है। प्रिलिमिनरी, जैसे आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी का तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, दैट इज पीटी एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम, उसको क्वालिफाई कीजिए, देन यू गो फॉर मेंस, देन इंटरव्यू, देन यू बिकम आईएएस or IPS. Okay. Yes, sir. So Yes. here preliminary expenses are those expenses basically that are spent prior to formation of the company. Understood? Now Yes. statement of profit and loss. What do you mean by statement of profit and loss? Debit balance, specifically debit balance. What does it mean by this? Has tell me what does it mean by this debit balance? PL account debit balance. Profit or loss? Debit Okay, balance. I am not going to explain it to you. You would tell me maybe in next class. Underwriting Yes. commission etc. ये सब assets हो गया आपका. Now read mono intangible assets. Thank you. If there is any goodwill, prepared expenses, patent, Trademark. trademarks, sir, आधा कटा हुआ है. The same have to be included in the The assets. same have to be included in asset taken over unless otherwise stated. समझ में आ गया? पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, गुडविल हो गया, ये हैव टू बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स टेकन ओवर. ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कुछ अगर अलग से नहीं लिखा है तो इसको कहाँ, इसको लेंगे. ठीक है, कहाँ लेंगे जी? Yes, sir. एसेट्स में लेंगे इसको. Fictitious assets, preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, underwriting commission, advertising suspense account are never included in the assets. तो fictitious assets क्या क्या है? fictitious assets जैसे preliminary expenses हो गया, discount on issue of shares and debentures हो गया, underwriting commission हो गया, advertising suspense account. suspense account क्या होता है जी? सस्पेंस का स्पेलिंग गलत लिखा है, SUSPENSE होता है. ठीक है, सी दिया है. ठीक है, सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा. सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मोनू, टेल मी. Trial balance you have read in your plus 2. You say no. Yes, sir. No. Yes, sir. तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं पढ़ा कभी, या पहले सुना नहीं आपने? सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब आपका ट्रायल बैलेंस, डाउटफुल एंट्री होता है उसको उसमें स्टोर करते हैं. उसको रखते हैं उसमें सस्पेंस अकाउंट में, और उसको जो है जब उसका पता चलता है कि कहाँ है क्या है उसका हिसाब किताब है, तब उसको सही जगह पर बैठा देते हैं, सही जगह पर रख देते हैं. ठीक है, Yes. नहीं तो तत्काल अकाउंट मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट में. सस्पेंस, सस्पिशियस, वर्ड से ही लग रहा है कि सस्पिशियस है. हाँ? है ना, शंका वाला चीज है, तो शंका वाला चीज को अलग से रखते हैं. इफ सम एसेट्स इज नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांस, कुछ एसेट्स ऐसा है जिसको कि वो कंपनी बोलेगा कि हम नहीं लेंगे, द सेम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडर. जो बोल देगा कि इस एसेट्स को नहीं ले रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है. लायबिलिटीज क्या होता है हर्ष, पढ़िए तो. द टर्म लायबिलिटीज विल ऑलवेज Liabilities मीन, will always mean all liabilities to third parties और बस सर उतना ही है. और फिर और नीचे आउटसाइड लायबिलिटीज. Only those liabilities are included in liabilities which have been taken over by the transfer. यहाँ पे देखिए assets में those assets which are taken over. Now liability side also only those liabilities which are taken over. ठीक है, will be considered. आया समझ में? Liabilities which are not taken over by the transfer company shall not be deducted. उसको deduct नहीं करना है. Such liabilities are paid off by the transfer company itself. जो लायबिलिटी को नहीं ले रहा है वो कंपनी बोले, कंपनी क्या बोलेगा, हम ही उसको पे कर दे रहे हैं, तुमको नहीं लेना है तो मत लो भैया, हम ही पे कर दे रहे, जाओ. ठीक है. ट्रेड लायबिलिटीज में क्या होता है? बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स. आई मे आस्क यू इन द क्विज दीज थिंग्स. ट्रेड लायबिलिटीज इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स, लाइक दिस माय क्वेश्चन, ओके, मे कम.
नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का क्या होता है जी? द टर्म लायबिलिटी शैल नॉट इंक्लूड एनी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो लायबिलिटीज में कोई भी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है तो वो नहीं आएगा, या रिजर्व है तो वो नहीं आएगा। कौन कौन सा? जैसे जनरल रिजर्व, जैसे सिंकिंग फंड, जैसे डिविडेंड रियलाइजेशन फंड और रिजर्व। सिंकिंग फंड क्या होता है सर? सिंकिंग फंड होता है, एक फंड बनाया जाता है, उसको यूटिलाइज कर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं ना, जब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में तब समझ में आएगा। अभी इतना ही समझिए कि सिंकिंग फंड एक फंड है जो कि अमेलगमेशन वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक सिंकिंग फंड में पैसा डाला जाता है, वहां से उस पैसे को बाद में यूटिलाइज किया जाता है। इतना ही आप समझ कर रखिए बस अभी। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। डिविडेंड क्या है जी? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस फंड, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी का जब होता है ना जी, मर्जर एक्विजिशन एमाल्गमेशन जब होता है, छोटा मोटा कंपनी नहीं कि हर्ष कंपनी और सर कंपनी, एक सर का कंपनी है, एक हर्ष का कंपनी है, हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो उतना बड़ा कुछ होने का नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास क्या रहेगा? एसेट्स के नाम पर एक दो कंप्यूटर रहेगा, एक कुर्सी रहेगा, एक टेबल रहेगा और बैंक का लोन रहेगा, उसके लिए मोनू है ना? तो इसमें कुछ नहीं होता है वैसा, लेकिन जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे होता है ये सब चीज। ठीक है। यस। If the business of transfer company is purchased, it will be presumed that all liabilities are taken over by the purchasing company. It will be presumed. Business क्या होता है? The term business will mean both the assets and liabilities of the company. Business का मतलब क्या हुआ? Assets and liabilities दो कंपनी का जो है वो हुआ। अब इधर में फॉर्मेट एक दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 2 का देखिए, दिख रहा है? यस सर। पढ़िए उसको, थोड़ा धीरे पढ़िएगा, समझ समझ के, और हमको समझाते हुए पढ़िएगा। पढ़िए। The balance sheet of UMA Limited on 31st March 2016. उसके ऊपर में पढ़िए क्या है? कैलकुलेशन ऑफ Calculation of purchase consideration by net value of assets method. तो ये कौन सा मेथड से बनाना है? नेट एसेट वैल्यू मेथड, जिसमें हमने बताया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे लेना है, प्लांट एंड Yes. मशीनरी को लेना है कैसे, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, उसके बाद जो लाइबिलिटीज है, डिवेंचर, ट्रेड पे, ये बताया ना जी। टोटल एसेट्स को जोड़िए, माइनस कीजिए टोटल लाइबिलिटीज को। गुडविल के बारे में दिया है कि 2%, 5%, तो नेट एसेट्स में से 2% या 5% वो निकाल करके जोड़ दीजिए। दैट विल कम, वट एवर फिगर यू आर गेटिंग, दैट फिगर विल बिकम योर परचेज कंसिडर। ये परचेज कंसिडरेशन एग्जाम में निकालने आएगा, पक्का आएगा मोनू। छोटा क्वेश्चन में 5 नंबर का आएगा ही आएगा, जान लीजिए परचेज कंसिडरेशन। इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। मैं बड़ा क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन में आएगा। पढ़िए हर धीरे धीरे। Yes. द बैलेंस शीट ऑफ उमा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 इज एज अंडर। ठीक है जी। Shareholders fund. देखिए कैसे फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी देखते रहिए। सबसे पहले क्या आया है? हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे, लेफ्ट साइड में एसेट्स, सॉरी लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखते थे, राइट साइड में एसेट्स लिखते थे। लेकिन जब कंपनी का बैलेंस शीट बनता है तो ऐसे ही बनता है, और ये नोट नंबर जो लिखा हुआ है वहां पे शेड्यूल लिखा जाता है। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, ऐसे करके। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल बनाया है। ठीक है, आई हैव मेड इट प्रैक्टिकल। ओके, नाउ रीड। Equity and liabilities. First, shareholders funds. Share capital 7500. Equity shares of rupees 10 each, 75,000. Reserves and surplus statements of profit and loss 25,000. General reserve 40,000. Sinking fund 40,000. 1 lakh 5,000. 5000। हाँ। Yes sir. 1 lakh 5,000. हाँ। Non-current liabilities 10% debentures 2 lakh. Outstanding interest on debentures 20,000. 2 lakh 20,000. Current liabilities trade payables 60,000.
ठीक है, टोटल ये हो हो गया गया लाइबिलिटी साइड। 2,60,000। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट प्रेजेंट होता है इसी फॉर्मेट में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अरे भाई मोबाइल जो वर्टिकल। आप रखे हैं, मोबाइल क्या है, मोबाइल सामने में रखते हैं, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, सीधा सीधा? वर्टिकल। चलिए क्या है वो बताइएगा। तो यही यही फॉर्मेट है इसका, बैलेंस, कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे ही बनता है। फिर एसेट्स पढ़िए मोनू। Non-current assets, 2 lakh. Mm, लैंड एंड बिल्डिंग 2 Land लाख। and building, 2 lakh. हाँ, Plant and machinery, 1,28,000. Debenture fund investment, 40,000. Total sum, 3 lakh. 3,68,000। चलिए। 68,000. हम्म, Current assets, trade receivable, 80,000. Cash हम्म। at banks, 2,000. Preliminary expenses, 10,000. The total is देखिए सब, 4,60,000. हाँ, सबसे पहले क्या है कि आपको जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है और नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स का मतलब हुआ कि जो फिक्स्ड एसेट हुआ, नॉन करंट इक्वल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट, अंडरस्टूड और नॉट? अरे भाई नॉन करंट Yes, है sir. तो मतलब करंट नहीं है, तो करंट नहीं है तो क्या है जी, फिक्स्ड है। फिक्स्ड। Fixed. तो फिक्स्ड एसेट्स हुआ, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स नहीं हुआ। यस सर। जी हाँ, तो सर. नॉन करंट मतलब कुछ सोचने, मतलब ये कि नॉन करंट लिखा है, करंट एसेट्स तो लिखा नहीं है। तो नॉन करंट मतलब फिक्स, सीधा बात है, ऐसा Fixed. समझिए, घुमा के दिया है। यस सर। Okay. वैसे वैसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गया, वो फिक्स्ड लाइबिलिटीज हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया। नॉन करंट यस। लाइबिलिटी Yes, sir. मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। अब क्या है, मधु लिमिटेड एब्जॉर्ब्स उमा लिमिटेड, ये किसका बैलेंस शीट था जी, उमा लिमिटेड का था। अब मधु Okay. लिमिटेड एक कंपनी आया है जो उमा लिमिटेड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छा. यस हम्म। सर। अब वो क्या सब लेगा और क्या सब छोड़ेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में हिसाब किताब दिया है। तो मधु लिमिटेड टू टेक ओवर द ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल है हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज में 60,000, यस सर। 60,000। तो उसको दिया है कि ले लेगा वो। फिर मधु लिमिटेड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंट्रीज एट 120% ऑफ द बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू मैंने जो वैल्यू दिया है आपको, प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड एंड बिल्डिंग का एंड इन्वेस्टमेंट का, कितना दिया है, 2 लाख, 1,28,000। एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ है जी, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, उसको 120% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब मान लीजिए 100 रुपया है तो उसको 120 रुपया में ले रहा है, समझ जाइए आप, बुक वैल्यू में भी नहीं ले। ये हो गया एट एन एग्रीड प्राइस और एट फेयर फेयर मार्केट प्राइस, कि बाजार में तो उतना करके मिल रहा है तो आपको उतना मिलना होगा, उतना में लेना होगा, या ज्यादा करके लेना होगा, ज्यादा करके ले रहा है। नहीं आया समझ Okay. में? यस सर। 100% पे ऐसा भी देता कि 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो 100 रुपया का चीज को 90 रुपया में ले रहा है, वो भी एक केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपया का चीज को कितना में ले रहा है, 120 में ले रहा है। ट्रेड रिसीवेबल देखिए 90%, अब ट्रेड, अब जो ट्रेड रिसीवेबल है करंट एसेट्स में 80,000, उसको 90% में ले रहा है, मतलब 72,000 में ले रहा है वो, ठीक है ना। और गुडविल जो है उसका कितना लगाया वैल्यूएशन, 35,400। लाइबिलिटीज टू डिवेंचर होल्डर्स इंक्लूड, डिवेंचर होल्डर्स का लाइबिलिटी कितना है जी, आउटस्टैंडिंग, हाँ, इंटरेस्ट टू बी मेट बाय इशू ऑफ 2.5 लाख 15% डिवेंचर्स बाय मधु लिमिटेड। अब जो डिवेंचर होल्डर्स का जो लाइबिलिटी है उसको कैसे मीट करेगा, कैसे दे रहा है, 2,50,000 इशू करेगा डिवेंचर, 15% के हिसाब से मधु लिमिटेड इशू करेगा, ठीक है, किसको, उमा लिमिटेड को। अब कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, सबसे पहले देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है जी, 2 लाख है 2 लाख। हर्ष। तो यस दो सर। लाख का Yes, sir. जो है लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे लिया है, ये गलत दिया है, 100/100 नहीं होगा, 120/100 होगा, 120 कर लीजिएगा उसको, ठीक है। वही तो सर, Yes, sir. 120% होगा। वो गलत दिया है, गलत, देखिए 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 किताब में भी Okay. गलत हाँ देता हाँ। है, देखिए कहाँ विश्वास करे आदमी बताइए।
तो आदमी अपना माइंड अप्लाई नहीं करेगा तो बुक खाली फॉलो करेगा तो बस। तो लैंड एंड बिल्डिंग 120% लिया है तो 120/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगी जी? 2,40,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना है जी? 1,28,000 है, उसका 120% कितना हो जाएगा? 153 1,53,600 हो जाएगा। 600। अब यस सर। ट्रेड रिसीवेबल को 90% बुक वैल्यू में लिया है तो 80,000 का 90% 72,000 हो गया। समझ में आ रहा मनु? यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। अब डिवेंचर फंड नहीं इन्वेस्टमेंट समझ कितना है जी? डिवेंचर फंड 40,000। 40,000 है 40,000। है ना? 40,000 को कैसे किया है? उसको भी एक एक 20 में लिया 120 है, पे लिया है। यस सर। ठीक है? तो 48,000 हो यस गया। सर। अब गुडविल दिया है 35,400 दिया है ना? यस सर। हाँ सर। 35,400 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, ये टोटल एसेट्स हो गया। जी। सबको उसमें सबको ऐड कर टोटल लिए। अब उसके बाद घटाइए, उसमें से क्या सब माइनस करना है। लाइबिलिटीज टू डिवेंचर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ये इशू हुआ तो 10% डिवेंचर्स कितना है? 10% डिवेंचर्स 2 लाख है, ठीक है? सबसे पहले ट्रेड्स यस पेबल देखिए कितना है? ट्रेड्स पेबल, ट्रेड्स रिसीवेबल, नॉन करेंट। 60,000। ट्रेड पेबल्स कहाँ दिया हुआ है जी? सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के नीचे करेंट लाइबिलिटीज 3 करेंट, नंबर हाँ सर। हाँ, ट्रेड ट्रेड पेबल 60,000, ठीक है? अब ट्रेंड 10% डिवेंचर कितना है? 2 लाख, वो हो गया। और डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है? 20,000। ये सबको माइनस कर दीजिए, आपका हो गया परचेज कंसिडरेशन। इतना कर दीजिएगा, 10 नंबर आ जाएगा पूरा। हर्ष, इसी यस सर। फॉर्मेट में कीजिएगा और ऐसे ही कर दीजिएगा। 10 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक यस है? सर। तो सर 75 ये में वाला 10। पेज एक बार आप और भेज दीजिएगा ना अच्छा से, क्योंकि नीचे वाला कट गया है। वो क्या लेस कटा है लिखे बोलिए? हुए ट्रेड ट्रेड पेएबल वाला कट गया है। ठीक है, एक्चुअली फोटो खींचना उतना अच्छा से नहीं आता है वो, अभी मैं, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सीखूंगा अच्छे से, तब देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा आज कट गया है। हाँ चलिए, सर। अब धीरे आप ये 2 चीज आप सीखे, नेट प्रेजेंट नेट एसेट मेथड सिखा दिया आपको, और एक क्या सीखे जी? नेट पेमेंट मेथड सिखा दिया आपको। सीखे कि नहीं सीखे? यस सर। सीखे हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, जो भी बुक है मोनू। चलिए पढ़िए अब लमसम। अब तीसरा मेथड है लमसम मेथड, पेमेंट मेथड, पढ़िए। ब्लर है सर बहुत ज्यादा। समटाइम्स द क्वेश्चन, ठीक है, मैं सारा पेज भेज दूंगा फिर से। समटाइम्स द क्वेश्चन मे डायरेक्टली स्टेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कभी कभी क्या करेगा, आपको बोल देगा कि इतना लाख में खरीदा है, 20 लाख में, 25 लाख में, 20 करोड़ में, 25 करोड़ में, जो भी है। The transferee company may make lump sum payment to the transfer company for amalgamating its business. Amalgamating मतलब परचेज कर रहा है या मर्ज कर रहा है, मर्जर। In such a case, it will be presumed that this payment is meant for shareholders only. जब लमसम मेथड में आएगा और ये रहेगा कि लमसम पेमेंट किया है, तो आपको ये प्रिज्यूम करना होगा कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है सिर्फ वो शेयर होल्डर के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल, A Limited agrees to purchase the business of B Limited for rupees 25 lakhs. In such as case, the purchase consideration will be taken at rupees 25 lakhs. है समझ में? वो दे दिया 25 लाख तो 25 लाख ही हो जाएगा। Hence, no calculations are required in such a case. आया समझ में हर्ष? यस सर। क्या समझ में आया बोलिए? What have you understood, Harsh? Manu, you tell me, what have you understood? सिर्फ यस सर बोलने से काम नहीं चलेगा ना, बोलिए। हेलो, यस सर। बोलिए। यस सर बोला है आप लोग दोनों ने। Wherever you need to say no sir, you say no sir. See what they are saying. They are saying that in this method, in lump sum method, what happens?
in question directly they will give that a lump sum amount is paid. Okay, let's say 25 lakh, 25 lakhs. So in such a case, that figure or amount shall be presumed to be given to the equity shareholders only. That amount is, that purchase consideration is for the shareholders only. Understood? And Yes, sir. number two, in this case, no, there is no need of any calculation of purchase consideration. आया बात समझ में? अरे भाई और बोल पच्चीस दिया कि Yes, पच्चीस sir. लाख है वो पूरा शेयर होल्डर को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, और इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कोई कैलकुलेशन गुडविल नहीं। इतना पे लेना है, क्रेडिटर इतना पे लेना है, सब कुछ जी। हिसाब किताब दिया ही नहीं है। तो बोल दिया कि हाँ 25 लाख में आप अपना घर कितना में जी। बेचोगे, तो 25 लाख में बेचोगे, और मैं 25 लाख पे एग्री हो गया हूँ, तो 25 लाख आपको दिया, चलिए घर खाली कीजिए, अब घर मेरा हो गया, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। हाँ लेकिन अब यस ऐसा केस होगा मोनू कि 25 लाख का घर है और उसमें 20 जी। लाख का लोन है, तो आदमी क्या बोलेगा, भाई आप 30 लाख दे दीजिए हमको, और या नहीं तो आप एक ऐसे 10 लाख हमको दे दीजिए और 20 लाख रुपया लोन वाला जो लिया है HDFC बैंक को दे दीजिए। तो ये एक कंडीशन हुआ। और एक हुआ कि जी। 25 लाख दाम है, 25 लाख लमसम दे दिया, बात खत्म हुआ, उसमें लोन नहीं है। लेकिन आप एक घर है जिसमें लोन है, तो मोनू के पास गए लोन के लिए, तो लोन पहले से ही है, बैंक में लिया हुआ है घर पे, तो हमको बोलेगा घर वाला कि भैया आप लोन वाले को दीजिए, बैंक को पे कीजिए 20 लाख, जी। और उसके बाद 10 लाख जो है वो हमको दे दीजिए और घर ले लीजिए। तो यहाँ पे ये सब कंडीशन नहीं है, सीधा 25 लाख है। ये छोटा सा बात तो बोला है। चलिए पढ़िए, इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक से आया है कि पढ़ना पड़ेगा? In this method, the purchase consideration is calculated on the basis of the ratio in which the shares of the transferor company are to be exchanged for the shares of the transferee company. हम्म The पढ़िए exchange आगे। ratio is generally based on intrinsic value of shares of transferor company and transferee company. Intrinsic value of shares refers to the value of shares based on the net assets value or net worth of the company. Here also हम्म purchase consideration will mean payment of shareholders only. हम्म। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का घुमा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है जी, शॉर्ट नोट में 2 नंबर 3 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जो लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लेमैन्स भाषा में, देसी भाषा में, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ कि इन एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, अब जैसे मान Yes. लीजिए कि एक होता है कि आप गाड़ी जाके नया खरीद लिए, ठीक है जी, हाँ, Yes. और एक होता है कि आप, ऐसा है कि नया गाड़ी खरीदना है तो 2 गाड़ी लाइए पुराना, एक एक नया गाड़ी ले जाइए। ऐसा ऐसा भी हो सकता है, कैश नहीं देना है, 2 गाड़ी लाइए, 2 आप पुराना लाइए, कोई भी पुराना गाड़ी चलता हुआ कंडीशन में, और एक नया गाड़ी ले जाइए, बाइक, हो सकता है ना। तो जी। ये क्या हुआ, इन एक्सचेंज ऑफ, मतलब 1 व्हीकल इन एक्सचेंज ऑफ 2, you are giving your 2 old bikes to the Hero Honda company, and Hero Honda company is giving you 1 fresh new bike. So similarly in this case what happens, intrinsic value for 2 shares, for 4 shares, the new company they will get 1 share. Understood my point or not, tell me? Yes, sir. हर समझ में आया कि नहीं बात? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर ये वाला, मतलब नीचे अभी ये वाला पॉइंट। मैंने क्या कहा, मान लीजिए 2 कंपनी है और ये अमलगमेशन का आ रहा है क्वेश्चन, तो होता है ना इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से उसको अलॉटमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि इन एक्सचेंज ऑफ रेशियो, मतलब मान लीजिए ए और बी लिमिटेड है, तो बी लिमिटेड नया कंपनी में, नया है बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ए लिमिटेड वाले को क्या मिलेगा जी, बोलेगा कि आपके यहाँ जो 4 शेयर होल्डर है उसको हमारे यहाँ एक शेयर मिलेगा, तो 4:1। यस। आया समझ में? तो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ अंडरस्टूड और नॉट? समझ गया Yes, sir. तो मैंने हीरो होंडा का एग्जांपल दिया तो आपको हाँ नहीं समझ में आया? समझ अरे गया। भाई पुराना बाइक है घर में, हाँ सर। हाँ, तो 2 बाइक है, वो लाइए, ले जाइए दुकान में, दुआ होंडा के पास ले जाइए, और दुआ होंडा बोलेगा कि 2 बाइक लाइए, एक नया स्कूटी ले जाइए आप, माने फॉर एग्जांपल। यस। ठीक है, चलता हुआ कंडीशन, तो एक्सचेंज हुआ ना जी, 2 के बदले 1 मिला, जी। 2 के बदले 2 नहीं मिल रहा है, 2 के बदले 3 भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है कंडीशन, समझ रहे हैं? तो दैट इज व्हाट इट इज। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, और आप जो क्वेश्चन दिए हैं सब आप
देखिएगा देखिएगा घर में, और मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। A Limited agrees to take over B Limited having 10,000 shares of rupees 10. It is agreed that the shareholders of B Limited are to get rupees 25,000 in cash and 2 shares of rupees 20 each for every 5 shares. अब देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू यही हुआ, B Limited. 2 शेयर 20 रुपया का, मैंने 20 रुपये पर शेयर है, 2 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड। मतलब जो आदमी के पास 5 शेयर है ना, उसको 2 शेयर मिलेगा। ये बात समझ में आया आपको? हाँ Yes, समझ गए sir. सर। तो यही हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। आया बात समझ में? Yes, sir. हाँ, तो उसी चीज को घुमा फिरा के दिया है, और आपको घुमा फिरा के नहीं, एग्जैक्ट वर्ड लिखिएगा एग्जाम में। ये इंट्रिंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है जी, इसको याद कर लीजिएगा क्या होता है। समझ गए ना जी कॉन्सेप्ट? Yes, sir. मेरा सर, काम है समझ। मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपके माथे में घुसा देना, ताकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो एटलीस्ट समथिंग यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग। इट वुड नॉट बी लाइक ब्लैंक कि हाँ भाई आया, हमको तो कुछ वर्ड ही नहीं सुने थे। इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता देता हूँ अपना एग्जाम्पल दे करके। तो अभी देखिए क्या Yes, है sir. जी, हेल्ड इन बी लिमिटेड कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। कैश दे रहा है जी उसको 25,000 रुपया, तो क्या कैश लिख दिया। अब शेयर कितना दे रहा है जी? 5 शेयर, 10,000 shares. 5 शेयर के बदले 2 शेयर दे रहा है। हाँ हाँ जी. ये समझ जाइए, 5 शेयर है तभी आपको 2 शेयर मिलेगा। तो उस हिसाब से दिस इज व्हाट इंट्री। तो शेयर्स क्या है? 10,000 है ना, 10,000 शेयर है, 10,000 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाउ मच? 4,000 शेयर्स मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपये। ये समझ में आया ये हिसाब? Yes, sir. 10,000 बटा 5। हाँ Yes, हाँ sir. सर। देखिए 10,000 by आप 5 shares जो B Ltd का 5. था। 2 शेयर मिल रहा है 5 शेयर के बदले, तो 2/5 हो गया। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग टू 4,000। 4,000। 4,000 शेयर्स का कितना रुपया करके है? 20 रुपया करके है। 20 rupees each. तो ये हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन हो गया 1,05,000। तो सोचिए आज हम लोगों ने स्पीड में कितना चीज कंप्लीट कर लिया, फटाफट बहुत चीज सीख लिया है, नहीं सीख लिया आज हम लोगों ने? 3 टॉपिक की। तो फर्स्ट ऐसे इसी रॉकेट पायलट प्रोजेक्ट स्पीड में पढ़ाएंगे आप लोगों को। किस स्पीड में? रॉकेट स्पीड में। रॉकेट पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा। बस Pilot project. ठीक है। With this we are Yes, ending sir. today's session, and now my expectation from both of you is that in the next class I may ask you question related to your previous topics that is covered. What else we have covered today? We have covered intrinsic value, we have covered net present value, net asset value method, we have Asset covered value. net payment value method, we have covered the fair value concept, and apart from that we had studied the what else? We had studied several funds like several terminology like trade liabilities, business, accumulated profits we have studied, then accumulated losses, provision, etc. All these things we have covered. We have covered the purchase consideration of 3 methods. In the next class, the next class of yours may be delayed by 2 to 3 days. So wherever I be, and if I okay, and I will definitely try to take your classes online. ठीक है जी। तो इसको पढ़ते रहिए हर, ये आसान नहीं है उतना जितना आसान मेरे पढ़ाने से लग जाता है। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. जब मैं पढ़ाता हूँ तो कितना इजी लगता है ना, पानी की तरह लगता है, अरे इतना इजी है, इतना इजी है। लेकिन जब आप घर में पढ़ेंगे तो लगेगा तो बहुत टफ चीज है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं?